Welcome to RK English. Today is my second class of passivization. So, in my last class, I was telling about the meaning of passivization, its functions, its finite verb and non-finite verb functions, and its do's and don'ts part, and in the end we will come for an analysis class. So the other day I was telling you that passivization is the sleeping state of the verb. When we feel the action of the subject is more important than the subject is, we use a passivized form of the verb. And most important is that the verb has to be a transitive one. I have already elaborated about the transitivity and intransitivity case of a verb in my last class. You can refer to the earlier video. So this is most important, that a transitive verb is required to make an active sentence into passive. Next, the finite verbs. We have almost come to know that the aspects like present perfect continuous, past perfect continuous, and future perfect continuous, and future progressive, these four aspects cannot become passive because of its intransitivity case. Understand what I was explaining you the other day. Today we will continue that, and I should suggest you that apart from following 35 to 38 rules that is prescribed in the grammar books, we can be confined to 4 elements we require to change. Number 1, subject. Number 2, verb. Number 3, object. And number 4 is the preposition that we normally use by. Here I should say that these are the most important elements of change. You must have a good information. Then plus preposition by. So by, where should you use by? For the beings who has lively. For living beings, by preposition is used, and for things, abstract nouns, other prepositions are used. Even to that I have just given the example, that is, smoke filled the room. The room was filled with smoke. Another example also I told you the other day, that her silence worried me. I was worried about her silence. Right? So these are the 4 elements that we must confine to for a rehearsal of passivization. So we have come to end up to past perfect. Today we shall go for simple future and future perfect tense aspects, how they become a passive. So as such I tell you that B plus V3 is the format of a passivized verb. So if we have taken keep as the transitive verb, so simple future, what should we write then? Shall keep, and you see, you just get a mathematical calculation. What is the simple future of B? You see, present is MR, past was where, past participle been, simple future
shall will plus be. So because it's a first person we have taken initially, so this should be, this must be the second or third person, that's why this will come as will be plus V3 kept, right? देख पे मैथमेटिक्स रे जमती मैथमेटिक्स रे तुम सब मीर सर बारे पढ़ुच ना, मैथमेटिक्स रे जमती गोटे लॉजिक रोचे पिले गोटे प्रूफ रोचे आम सेमती ग्रामर रो प्रिंसिपल्स रही तेणु मीर सर जमती पूरा शार्प होके बताती आम भी ये सेमती पूरा शार्प होके माने यू सी वंस रिमेंबर मीन्स यू विल रिमेंबर इट फॉर ऑल, राइट? यू विल रिमेंबर फॉर ऑल, फॉर एवर, राइट? तो इसी परफेक्ट बर्तन फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट रे कौन है पे shall have kept. You see, you must know the constructive part. Last class I was telling you that do not take to by heart everything. सबु जिनस घुसिले हेनी, यू मस्ट नो द कंस्ट्रक्शन पार्ट एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट. ग्रामर र कॉन्सेप्ट उपरे फाउंडेशन उपरे व्हेन यू विल बिकम स्ट्रांग, नो बॉडी ऑन अर्थ कैन मेक यू लैग बिहाइंड. तुमको किए पछरे पकई पार. यू हैव टू बी क्रिएटिव बिकॉज इंग्लिश इज द इंटरनेशनल लैंग्वेज. No other language can be compared to this, but that doesn't mean that we will be weak in our own language. आमो language आमर जो मदर टंग अच्छी ओडिया आमे ताको भी दृढ़ होगा एवं जो लैंग्वेज शिखुचे एवं जो लैंग्वेज बहुल भाव में प्रसारित ताको भी शिखा किंतु उचित मार्ग रे शिखा है. तो इसी आम जो फ्यूचर परफेक्ट कंस्ट्रक्शन केमती है पे, दिस इज फ्यूचर एंड दिस इज परफेक्ट. परफेक्ट कौन है हैज हैव प्लस V3. तेणु मोडल हेबा हेतु ये हैज हेनी, साल हैज केबे हुएनी. व्हाई? बिकॉज इट्स ए मोडल वर्ब. मोडल इज ए नॉन फिनाइट एंड नॉन फिनाइट हैज नो टेंस फॉर्म. तेणुक यार सिंगुलर प्लूराल नहीं, राइट? द ऑक्सिलरी वर्ब्स, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑक्सिलरी वर्ब, बी वर्ब, हैव वर्ब, डू वर्ब. जान पे ऑक्सिलरी कौन? बी, डू, हैव. मोडल हूँ आउ 13टा शैल, विल, कैन, मे है, माइट, कुड, शुड, वुड, यूज टू, ऑट टू, डेयर, नीड, मस्ट. 13टा है. युड़ा पे कौन? युड़ा को आम नॉन फिनाइट वर्ब को यहाँ कैरेक्टर कौन पे? एम कैरेक्टर दे आर नॉट लिमिटेड टू पर्सन एंड नंबर. पर्सन माने फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. जमती कि आम इज, एम, आर, वाज, वेयर, ए कौन फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन को लिंक रोचे, किंतु एम मैंने लिंक रखती. आई पाखे विल आसो, ही पाखे विल आसो, किंतु कॉन्टेक्स्ट इज डिफरेंट है. हेले कौन है पे ये आसोनी, तेणु ये शैल हैव केप्ट है. तापर ये कौन है पे बी रो बर्तमान फ्यूचर परफेक्ट आस. बी रो फ्यूचर कौन पे शैल, सॉरी विल. परफेक्ट हैव बीन है, विल हैव बीन केप्ट, राइट? देख पे मुझे फ्रेज आनुची भर फ्रेज मुझे शिक्षापी आणुची किंतु ये तुम प्लस देदेवनी. विल हैव बीन केप्ट ये गोटे फ्रेज गोटे सांगे कहुज जो प्रैक्टिस आम कहे ना इट वोंट हैव, इफ यू हैड नॉट हेल्प मी आई वुड नॉट हैव बीन सक्सेसफुल. सो वी नेवर कंस्ट्रक्ट एटा केमिति हला. तो फ्रेजटा एकाथरे आम आणुच है. इफ यू हैड नॉट हेल्प मी आई वोंट हैव बीन सक्सेसफुल. आम सांगे सांगे नहीं आसे वोंट हैव बीन, वुड नॉट हैव बीन. तो ये गोटे कंस्ट्रक्शन आम माइंड रे पूरा पूरी माइंड सेट हो जाए. एटा को एटा कह जाए, एटा को एटा कह जाए, किंतु कंस्ट्रक्शन पार्ट इज वेरी इंपोर्टेंट है. बस तापर ये गला पे ये तुम केतरा गला फिनाइट्र सब हो गला. फिनाइट्र बर्तमान सब हो गला पे. नॉन फिनाइट जो सेक्शन आरंभ करेंगे नॉन फिनाइट्र मुझे आरंभ करी. बर्तमान फिनाइट्र किसी एग्जांपल नौ जो तुमको क्वेश्चन दिज्व पे असाइनमेंट दिज्व, यू विल हैव टू कैरी आउट दैट इट एट योर होम एंड यू विल कम हियर, राइट? अच्छा देखो बर्तमान कपड़ाटा कड़ा बर्तमान आस पे आम प्रैक्टिस रे किसी रहा. सो आई विल जस्ट टेक each one as an example.
of every aspect. देखो पहले सिंपल प्रेजेंट आम केवल क्रिया माने केमती पैसिव भाव जानी आम बर्तमान सेंटेंस को जीवा आम सेंटेंस गला भितर आमको एस भी ओ ये तीन टा जिनस आम इम्पोर्टेंट वी विल नॉट फोकस इन एनी अदर वर्ड्स दैट्स व्हाई आई टेल यू दैट पैसिवाइजेशन इज इजी किंतु टिके अंडरस्टैंडिंग दरकार पड़े तार डूज एंड डोंट्स पार्ट आम ताको परे चर्चा करिया वेयर शुड यू यूज इट राइट तो इसी सिंपल प्रेजेंट आम देखिले bees collect honey. Now you see this is subject, verb and this is object. Understand? So you see the object आमे कौन करछे पहले object becomes the subject, verb b plus v3 and the subject may or may not come. हला may or may not come आसी पारे न आसी पारे in accordance with its merit. देखो पहले आमे हमर स्कूल कैरियर रे आमे सब्जेक्ट को आनी थाउ तो आमे से जिनस परे चिंता करिया जे को जगह रे आसीबो को जगह रे आसीबोनी हला तो बीस कलेक्ट हनी मु एतले कॉन्टेक्चुअली मु एबे कहिथिबी किंतु परे ता पई गोटे चारिटा पांचटा रूल अच्छे मुझे लास्ट क्लास रे बोधे मुझे है तो बीस कलेक्ट हनी तो बर्तमान देख हनी कलेक्ट कौन अच्छे बोले सिंपल प्रेजेंट अच्छे सिंपल प्रेजेंट रो बी प्लस v3 आण बी रो सिंपल कौन है इज कलेक्ट पास्ट पार्टिसिपल कलेक्टेड बाय बीस है बर्तमान ये हूँ तुम पैसिव है हनी इज कलेक्टेड बाय बीस देख पे प्रथम जो शिखुच अंडरलाइन दे शिख सो लंग यू हैव फुल एक्विंटेंस विथ द सेंटेंसेस विथ द कम्युनिकेटिव पार्ट सो एवरी टाइम यू शुड हैव ए प्रैक्टिस देखो मैथमेटिक्स को जी प्रैक्टिस करियो सेति एक्सपर्ट हो ग्रामर इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ मैथमेटिक्स यू विल हैव टू गो फॉर इट and practice so that your mind could be creative and you can express anything that you could like है अच्छा देखो बर्तमान आस सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस रे कौन है पे देखो गोदरेज इज इंट्रोड्यूसिंग a new shop in the market. Godrej is introducing a new shop in the market. Godrej is introducing a new shop. Right? ये तमर पहले other words गला ये तमर object ये verb phrase and ये subject. हमार कौन दरकार object should be the subject. यही object आना ए न्यू सम ऑब्जेक्ट फ्रेज टा पूरा आसला ए न्यू शॉप टा कौन अच्छे पिले प्रेजेंट कंटिन्यूअस बी रो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कौन पिले तार धारा कौन कंस्ट्रक्शन पार्ट कौन इज एम आर प्लस भी आई एन जी हेले कौन है इज बिंग इंट्रोड्यूस टा कौन हम इंट्रोड्यूस्ड हेले कौन है पूरा पूरी इज बिंग इंट्रोड्यूस्ड by Godrej in the market है पे by Godrej in the market प्रेजेंट परफेक्ट को चलो प्रेजेंट परफेक्ट देखो पे इंडिया has won the match कौन है इंडिया has won the match
has been own बुझीपार ना प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव एटा बी रो प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव हैज बीन ओन विन ओन ओन हैला ओन बाय इंडिया राइट। अच्छा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बर्तमान आस सिंपल पास्ट तो सिंपल पास्ट देख पिले आई डिड द जॉब आई डिड द जॉब आई हूँ सब्जेक्ट डिड हूँ वर्ब एंड जॉब हूँ ऑब्जेक्ट द जॉब तो बर्तमान आस देख पिले आई डिड द जॉब ये हूँ तुम पास्ट सिंपल द जॉब आसला सब्जेक्ट डिड कौन है पे इट इज द V2 और पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब डिड तार प्रेजेंट कौन है डू डू डिड डन हेले कौन है बी रो पास्ट फॉर्म कौन पे वाज वेयर वाज डन है दिस इज द क्रिएशन पार्ट पैसिव क्रिएशन पार्ट एटा बोले एटा एक्टिव एटा तुम पैसिव डेसटा वाज डन है तो यू शुड बी सो मच ऑटोमेटिक दैट यू विल नॉट थिंक फॉर ए सेकेंड टाइम दैट व्हाट शुड इट बिकम कहीं आम जब प्रैक्टिस रे रहिबा ऑटोमेटिक से गुड़ा सब आम माइंड रे सेट हो है तो द वाज डन बाय मी देख पिले आम स्ट्रक्चरली बाय मी कहूचे किंतु देख पिले आम एमती प्रोनाउन नॉर्मली द प्रोनाउन्स आर नॉट कम एज एन ऑब्जेक्ट है नॉट कमिंग एज एन ऑब्जेक्ट आईटा आई यू ही एगुड़ा सब करा जाए देख मन कर ही डिड द जॉब आम कले है द जॉब was done that's all by him unless otherwise it is a requirement in the sentence or in the paragraph normally कौन पे paragraph रे हमर already subject mention है कि थाए हैला already subject mention है कि थाए तेणु सेमिति आवश्यक न पड़ले आम सिंगुलर सेंटेंस रे आम नहीं पारिया किंतु पैराग्राफ भितर आम नेबानी कारण आम बहुत करी आम कम्युनिकेटिव माने कौन द आर्ट ऑफ राइटिंग ए पैराग्राफ द आर्ट ऑफ राइटिंग ए कम्प्रेहेंसिव मटेरियल आम सब यही गुड़ा चेष्टा अच्छे तेणु आमको फंक्शनल बा अप्लाइड बा एडवांस्ड होगा पड़ो आम से स्ट्रक्चर भितर केवल रही चलो राइट दिस इज द सीक्रेट दैट आई एम रिवीलिंग टू यू तो इसी अच्छा नेक्स्ट आसा पिले पास्ट कंटिन्यूस देखो द आर्टिस्ट वाज ड्राइंग ए नाइस पिक्चर ध्यान दियो पिले नाइस पिक्चर वाज ड्राइंग एंड द आर्टिस्ट देखो ये रहा सब्जेक्ट अंडरलाइन कर ही शिखो तुम भी घरे जो असाइनमेंट कर देख मोर मेटेरियल भी मुझे अंडरलाइन करें मो पिला शिखोची देख मुझे अंडरलाइन कर तुम भी कर सो दैट यू विल कम फॉर प्रैक्टिस सो देयर इज ए गुड डिविजन ऑफ द सेंटेंस एंड दैट कुड बी वेरी मच क्लियर बिफोर योर आईज राइट यू विल नेवर बी कन्फ्यूज्ड कहीं बहुत समय पार्ट्स ऑफ स्पीच उपर धारणा न थाए राइट तो आम बहुत समय भूल कर बसता प्रिपोजिशन टाक सेपट रखिदेव स्टार्ट कर देथु आम जानू व्हाट इज सब्जेक्ट फ्रेज आम जानू व्हाट इज वर्ब फ्रेज और आम जानू व्हाट इज ऑब्जेक्ट फ्रेज तेणु आम अंडरलाइन करदे दैट कुड बी वेरी मच क्लियर बिफोर अस ओके सो यू सी द आर्टिस्ट वाज ड्राइंग ए नाइस पिक्चर तो कौन है पिले ए नाइस पिक्चर देखो वाज ड्राइंग ये हूँ आम फोकस्ड पार्ट पे आम पासिवेशन शिखुचे एगुड़ा को मार बोली आमर एटा पार्टा को शिखिदेवार अच्छे पूरा ऑटोमेटिक हो जाए माइंड भितर वाज ड्राइंगटा कौन है पे पास्ट कंटिन्यूअस बी रो पास्ट कंटिन्यूअस कौन वाज प्लस VING वाज बीइंग जमती आम प्रेजेंट कंटिन्यूअस रे इज बीइंग करथिला हला सेमती पास्ट कंटिन्यूअस रे वाज बीइंग और वेयर बीइंग एटी आमर सिंगुलर रही एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन रही तेणु रहा was being done देखो पिले
ड्र ड्रीव ड्रन भेरी इंपोर्टेंट प्रत्येक वर्ब पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल जानिबा बहुत समय आम मु खाता पिलांकर करेक्शन करे बहुत समय न जानिक ईडी लिखि दौरान ईएन लिखि दौरान किंतु सेमती हुए पिले तो माने रेगुलर इरेगुलर है ये सब वर्ब गुड़ा सब जाना पड़ो से लगे 6th क्लास रे आमको शिखा जाए अनेक वर्बर पास्ट एंड पास्ट फॉर्म तुम ट्रांसलेशन बही हो सब देखी सब अनेक वर्बर से शिक्षा दि जाए है किंतु ताकू आम प्राक्टिस आम करने तेणु आज आम हैरान होचे पिला खाता देखला बेले बहुत समय मुझे देखुची जे पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रे बहुत भूल कर वाज बीइंग ड्रॉन बाय द आर्टिस्ट नेक्स्ट आस पिले पास्ट कंटिन्यूस है पास्ट परफेक्ट आस पास्ट परफेक्ट आस देख ये गोटे जिनस मुझे कौच पिले पास्ट परफेक्ट नेवर कम्स एलोन ध्यान दियो पास्ट परफेक्ट तुम जान पिले तुम स्कूल लेवल रे पढ़ इट इज ए रिमोट पास्ट माने दूर अतीत पाखे गोटे अतीत थे तो दूर अतीत हम है तेणु इट्स ए वेरी सिंपल रूल दैट पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड इन 3 केसेस नंबर 1 इन रिपोर्टेड स्पीच तुम जान पिले रिपोर्टेड इनडायरेक्ट नरेशन तुम कौन कर रिपोर्टिंग वर्ब जो दिखाई रिपोर्टेड स्पीच पार्टारे आम कौन जो इनवर्टेड कमा भितर अच्छी तार जो वर्बटा रही आम करेस्पॉन्डिंग पास्ट फॉर्म कर तो एमती जगह सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कम्स टू पास्ट परफेक्ट करेस्पॉन्डिंग पास्ट फॉर्म है देखो व्हेन द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड ऑलरेडी डाइड व्हेन आई रीच टू द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट ये देखो हैड लेफ्ट हैड डाइड केते बिकॉज बिफोर दैट देयर इज ए पास्ट फॉर्म ये गला पिले गोटे इनडायरेक्ट नरेशन रहा आ गोटे रहा कंपाउंड सेंटेंस आ गोटे रहा तुम ये जो जिनसा मुझे कहली क्लॉज कौन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रे रहा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रे रहा तो इसी ए नाइस पिक्चर वाज बीइंग ड्रॉन बाय द आर्ट ये गला छाड़ ये पास्ट परफेक्ट देख तेणु आम देख पिले दीटा अतीत भितर गोटे गैप रहा दरकार देयर शुड बी ए गैप इन बिटवीन द 2 पास्ट एक्शंस है तो द फर्स्ट एक्शन विल टेक द पास्ट परफेक्ट फॉर्म व्हेन द डॉक्टर रीच्ड द पेशेंट हैड ऑलरेडी डाइड को घटना आग घटिला रोगीटी मरी जाइथिला तेणु सी गला हैड डाइड है कि भितर दूरत्व रहा दरकार दुईटा अतीत भितर दूरत्व रहा दरकार है जदि समान टाइम रे हम ताले दीटा को पास्ट हम फॉर एग्जांपल साइमल्टेनियस एक्शन इन द पास्ट ध्यान दियो पिले सार माने एमानू फोकस करन थिए तम मानू आई नो इट वेरी वेल है जदि बहुत रेयर टीचर अच्छा एते एलाबोरेटिव जी बहुत रेयर टीचर जो मैंने प्रकृति में डेडिकेटेड दे विल जस्ट गो एलाबोरेटिव कहीं से माने समृद्धि करने पिला चाहती किंतु अनेक केस रे आम देखीचु बार्ड्स आई व्यू देके आसुँच मो पाखे पिला पढ़ुं कॉलेज मु देखी आस तो देख पिले ये आम गोटे जिन जाना पड़ो जे साइमल्टेनियस एक्शन इन द पास्ट ट्रांसलेशन कले भी जान राइट व्हेन आई इनफॉर्म्ड हर द न्यूज़ When I informed her the news, she cried out. When the teacher came in, all the students stood up. तो ये कौन होची simultaneous action in the of the past. अतीत रे कोनीसी दुईटी कार्य एका संगे हेले दीटा एक पास्ट फॉर्म नबो सेठी तमर गोटे चेंज हेबनी किंतु एठी जदि दुईटी कार्यक्रम अतीतर दुईटी कार्यक्रम जदि दुईटी भिन्न भिन्न समय रे हेइथिवो ताले प्रथम कार्यक्रमटा को हमें पास्ट परफेक्ट को नहीं थाओ अंडरस्टैंड अच्छा बर्तमान आस द अकाउंटेंट had kept the records ready before the collectors
visit. The accountant had kept the records ready before the collector's visit. देखो पिले एड़ा तुम अदर वर्ड्स गला आमको केती दरकार सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बस बाकी सब सेमती रहिबो देखो ऑब्जेक्ट को आना द records visible the records had kept को देखो पिले बी रो had kept कौन हला तुम जो कही ना बी प्लस v3 बी रो पास्ट परफेक्ट कौन had been हाँ keep रो kept had been kept the records had been kept ready before the collector's visit है पिले देख राइट ये जो जिनसा रोचे तुम यार पैसिव हो बर्तमान आस फ्यूचर फॉर्म को जीवा फ्यूचर केतेटा अच्छी फ्यूचर सिंपल एंड फ्यूचर परफेक्ट चलो फ्यूचर सिंपल एंड फ्यूचर परफेक्ट देखो पिले सुचरिता will sing a song ध्यान दियो पिले मुझे थर्ड पर्सन नेली तेणु will यूज कली ये भी थर्ड पर्सन है तेणु आम will ही रखा will sing a song ये तुमर सिंपल फ्यूचर वर्ब है ये सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये कौन आसला ए सॉन्ग विल सिंग कौन सिंपल फ्यूचर बी रो सिंपल फ्यूचर कौन है विल बी सिंग रो पास्ट पार्टिसिपल कौन हम सिंग सांग सॉन्ग देखो बोले सिंग लेजिटोन सांग लेजिटोन राइट फर्स्ट टोन सांग है SUNG बहुत पिला सिंग सांग सांगड ईडी लिखुं है किंतु सिंग सांग सॉन्ग तो विल बी sung by सुचरिता बर्तमान आस फ्यूचर परफेक्ट को आस फ्यूचर प्रोग्रेसिव नहीं फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी नहीं कारण कही पिले फॉर देयर इंट्रांजिटिविटी केस इंट्रांजिटिव राइट दे कैन नॉट कम विथ एन ऑब्जेक्ट तेणुक हो पारनी है आमको सार माने मेट्रिक लेवल रे एटा हबनी रे पिले बोली कहीदेवे है तो देख पिले दे shall have completed the job or the work है पिले ये वर्ब फ्रेज कौन रहा shall have completed फ्यूचर परफेक्ट बर्तमान समय द वर्क ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है द वर्क कौन हम बी रो फ्यूचर परफेक्ट कौन है shall have been देख पिले एटा फ्यूचर एटा परफेक्ट फॉर्मेशन फ्यूचर परफेक्ट shall have been तापरे completed राइट देख द वर्क shall have been completed देख पिले जो देटा अच्छी एटा अनआइडेंटिफाइड सब्जेक्ट तेणुक एटा लिखा दरकार नहीं केवल द वर्क shall have been completed दे कौन से इनडिफिनाइट देख पिले सब देख डेफिनाइट पर्सन जदि होची तबे भी आम दुई थर चिंता करचे वेदर इट इज नेसेसरी और नॉट जदि अनआइडेंटिफाइड हो गला ताले यू शुड नॉट मेंशन इट व्हाई शुड यू मेंशन
if the subject you do not know. In my last class also I was telling you that when you do not know the identity of the, when the identity is not known, you should not mention. Jamti ki my pocket has been picked. Yesterday I was giving you through an example. Hala, तो my pocket has been picked. मोरो pocket मार रही गला. किए नेला मुझे जाननी. When I do not know the subject, why should I mention that? By someone लिखिएगी. सेमिति they माने who. तेणु जेहेतु अनआइडेंटिफाइड रोचे अनआइडेंटिफाइड तेणु वी शुड नॉट मेंशन दैट किंतु स्ट्रक्चरली आम पिला बेले बाय देम करी कर दोथिले सही जिनस सिक्रेटटा मु रिवील करछि बर्तमान दरकार नाही हला सेतले सेंटेंस गढिया जाउथिले बेले बर्तमान पैराग्राफ गढिया जाउछे दिस इज द सिंपल थ्योरी हला ये बर्तमान हे गेला पिले तमर कोन फिनाइट फॉर्म रो सब जाको हे गेला राइट नेक्स्ट क्लासटा 20टा खंडे क्वेश्चन करी नेक्स्ट क्लास जो थे कि तुम 20टा एग्जांपल विभिन्न तरफ करेबी ये बोर्ड रे करेबी तापर मु नॉन फिनाइट को जीवी जिते 20टा करेबी से कही डूज एंड डोंट पार्ट रू आरंभ करी वेयर वी शुड नॉट मेंशन द सब्जेक्ट दिस शुड बी माय फर्स्ट प्रायोरिटी देन आई विल शॉर्ट आउट 20 क्वेश्चंस आफ्टर दैट यू विल अटेम्प्ट 200 क्वेश्चंस ओके थैंक यू